ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਾਲਾ ਸਰਨਦਾਸ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। 올림픽 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੁਨੀਲ ਤਨੇਜਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਾਲਾ ਸਰਨਦਾਸ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 올림픽 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੁਨੀਲ ਤਨੇਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੁਨੀਲ ਤਨੇਜਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਤਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲਾਲਾ ਸਰਨਦਾਸ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੁਨੀਲ ਤਨੇਜਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਨ। नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा अपना रुपेश बांसल ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ 올림픽 2020 ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੁਨੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਤਨੇਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਵ ਹਿਤਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ। ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬਰਗਦ ਦਾ ਪੇੜ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਪਰ ਜੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਆਪਣੀ ਜੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਭਟੂਰੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਖਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ है ना। हिंदी बोल के मैं अपना घर चलाता हूँ, हिंदी बोलना मेरा प्रोफेशन है, लेकिन हिंदी बोलना मुझे सर्व हितकारी स्कूल ने सिखाया। मधु दीदी ने हिंदी का व्याकरण, हिंदी का उच्चारण मुझे दीदी ने सिखाया, सर्व हितकारी स्कूल ने सिखाया। तो हमेशा जहाँ से सीखा है वहाँ धन्यवाद ज्ञापन देना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना और नए बच्चों से मिलना, ये सौभाग्य की बात है। तो फाजिलका आना बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। कितने समय बाद आप फाजिलका आज आए हैं और कैसा लगा? फाजिलका जी मैं साल में कई बार एक बार आता हूँ, कई बार 2 बार आता हूँ। आखिरी बार आया था मैं मई के महीने में जब मुझे कोविड हो गया था तो दिल्ली में कोविड का प्रकोप था, तो मुझे लगा फाजिलका चलते हैं, अपना घर है, मेरा भाई है, तो कम से कम देखभाल अच्छी हो जाएगी। तो फाजिलका आया, मैं स्वास्थ्य लाभ हासिल किया, वापस दिल्ली चले गए। उसके बाद अब हमारे फैमिली में एक फंक्शन है, तो उस कारण फाजिलका आना ही था और दीदी को न्योता देना ही था मैंने। तो दीदी ने मुझे आदेश दिया कि आपको स्कूल में आके बच्चों से बात करनी है, तो दीदी का आदेश सर आँखों पे, तो अपने स्कूल में हूँ। कैसा लगा बच्चों से आज बातचीत करके?
बच्चों से बातचीत करके सर फिल्म रिवाइंड हो गई, वो फ्लैशबैक चलने लगा कि इसी प्रांगण में हम लोग बैठते थे, यहाँ भी सामने भी ये भी क्लास हमारी थी, वो क्लासरूम भी हमारा था, ऊपर वाली वो क्लास भी हमारी थी, दीदी हमें हिंदी पढ़ाते थे, सुनीता मनचंदा दीदी से हमने बचपन में पढ़ा है। यहाँ इन बच्चों की जगह कभी हम बैठते थे, आज ये बच्चे बैठे हैं, इनको संबोधित करने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी का एक सर्कल पूरा हो गया। अब ईश्वर से प्रार्थना है कि सर्कल और बड़ा होता रहे, बार बार घूमता रहे मैरी गो राउंड की तरह। पर ये सम्मान का मौका है कि जब हम यहाँ बैठते थे और बड़ी बड़ी विभूतियों को सुन के उनसे प्रेरित होते थे, मैं कोई विभूति तो हूँ नहीं, लेकिन जो थोड़ा सा मेरा अपना अनुभव है ज़िंदगी का, वो बच्चों के साथ अगर मैं शेयर कर सकूँ, अगर मेरे ये भाषण सुन के, मेरी बातें सुन के एक बच्चा भी अपने मन की बात सुन के कुछ बड़ा ज़िंदगी में कर पाया, तो मुझे लगेगा कि मैं गौरवान्वित हो गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप फाजिलका वासियों को हमारे चैनल के माध्यम? आपके चैनल के माध्यम से फाजिलका वालों को यही एक मैसेज है कि आप सब भाग्यशाली हैं कि फाजिलका जैसी भूमि पर आपका जन्म हुआ है। उसका कारण ये है, ये नहीं है कि जो अबोहर वाले हैं या जो दिल्ली वाले हैं या जो जबलपुर वाले हैं वो भाग्यशाली नहीं हैं। हम भाग्यशाली ख़ास तौर पे इसलिए हैं क्योंकि छोटे शहर में जो खूबसूरती होती है, जब भी हम बड़े शहर में जाते हैं ना, हर कोई कहता है कि यार यू आर फ्रॉम स्मॉल टाउन, एवरीबडी नोज़ एवरीबडी। यहाँ एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है, यहाँ मेरे टीचर मेरे सर या मैम या मेरे टीचर नहीं हैं, यहाँ मेरे टीचर मेरी माँ हैं। यहाँ वो सुनीता दीदी जिनसे मैं 30 साल पहले पढ़ता था, उन्हें अभी तक याद है कि मैं प्रेयर में आके सतगुरु की साखियाँ सुनाया करता था। मधु दीदी को अभी तक याद है कि मैं किस तरह से स्टेज में मैंने क्या क्या काम किया है। तो यहाँ पे हर किसी से, चाहे वो टीचर हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, चाहे हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, रिलेटिव हैं, उनसे रिश्ता बनता है। वो प्रोफेशनल नहीं होता। यहाँ वो पार्किंग के लिए झगड़े नहीं होते हैं। यहाँ वो मेरे कुत्ते ने ये कर दिया और तुम्हारे बच्चे ने डांट दिया, उस बात के झगड़े अगर होते भी हैं तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। यहाँ अगर मैं खुद एक पिता बन गया हूँ तो अपनी माँ को, अपनी टीचर को नहीं बोलता हूँ। बड़े शहरों में मुझे लगता है ये चीज़ें उतनी संभव नहीं है। तो फाजिलका वासियों से यही मेरा मैसेज है, यही मेरा निवेदन है कि हम सब भाग्यशाली हैं कि फाजिलका के वासी हैं, क्योंकि यहाँ हमें शहर नहीं मिलता, यहाँ हमें परिवार मिलता है और परिवार हमेशा आपके साथ रहता है। तो ये थे सुनील तनेजा जी जो हमें जानकारी दे रहे थे। तो बातचीत करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल मधु शर्मा से, जिनसे ये इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। की कहोगे किस तरह के नाल आज सुनील वैसे तो जब भी फाजिलका आता है मुझे मिलने ज़रूर आता है, और एक हमारा संबंध पता नहीं कैसा है, वो शिष्य और गुरु का या माँ और बेटे का, वो तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। हम दोनों रिश्ते मानकर चलते हैं, और जब भी ये फाजिलका आएगा मुझे बिना मिला इसने जाना नहीं है। और जितना सम्मान इस जनरेशन ने हमें दिया है, वो बीइंग ए टीचर, प्रिंसिपल तो बाद में बनी हूँ, पहले टीचर ही थी। बीइंग ए टीचर वो प्राउड फील होता है कि इस प्रोफेशन के अंदर कितना सम्मान है, जो बच्चे अपने गुरुओं का इतना सम्मान करते हैं, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। कैसा लगा आज ये स्कूल पहुँचे और बच्चों को इन्होंने संबोधित किया? तो नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल की जो बच्चे हैं ना, ये मैंने स्पीच में भी कहा था कि रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। संघर्ष करना, मेहनत करना उन्हें शायद पसंद नहीं, बल्कि अमीर बनना पसंद है। लेकिन जब सुनील ने बड़े विस्तार से अपने 1 घंटे के अंदर अपनी पूरी यात्रा कि कैसे कमेंटेटर बना, कैसे डॉक्टर बना, कैसे कैसे जाना पड़ा, आना पड़ा, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो बच्चों के सामने जब कोई अपने स्कूल का ओल्ड स्टूडेंट अपनी पूरी बात बताता है कि उसका अगर वो इस मुकाम तक पहुंचा है तो उसके पीछे का संघर्ष क्या है, तो शायद बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। और शायद वो बड़ी मार्कशीट की बात करी है, परसेंटेज की बात करी है, संयम की बात करी, आत्मविश्वास की बात करी। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि जब अपने ही स्कूल का कोई बड़ा विद्यार्थी आकर बच्चों से बात करता है तो बच्चों को अपनापन सा लगता है। और उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ भी इसने अपने वो जीवन की यात्रा से बताया है, बच्चे उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ अपने जीवन में अपनाएंगे ज़रूर, और अपने जीवन में वो भी इस लेवल तक पहुँचने का प्रयास ज़रूर करेंगे। ये मेरी कामना है जी। थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਵਿਸਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ 2020 ਦੇ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸੁਨੀਲ ਤਨੇਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ।